সাংসদ মাননীয় সুনীল মণ্ডল মহাশয়, সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জগদীশকে শাল দিয়ে বরণ করে নেবেন। ওনাকে বরণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এরপর আমি ডেকে নেব এই এলাকারই কৃষক প্রতিনিধিদের, যারা মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজিকে এক মুষ্টি অন্ন দিয়ে অভিযানের শুভ আরম্ভ করার জন্য এবং কৃষক ভাইদের একটি ব্যাগ উপহার দিয়ে গ্রামে গ্রামে জনসম্পর্ক করা এবং এক মুঠো করে অন্ন সংগ্রহ করে ছবি সভামঞ্চ কাটোয়ায় যেখানে বক্তব্য রাখবেন জেপি নাড্ডা। অন্যদিকে এই সভা শেষ করেই তিনি যে বাড়িতে চাল এবং সবজি সংগ্রহ করতে যাবেন সেই নিতাই মণ্ডলের বাড়ির ছবি আপনাদের সামনে আমরা এনেছি, যেখানে তুলসী তলায় তুলসী মঞ্চে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন সবজি এবং চাল। রণদেব আমাদের প্রতিনিধি রয়েছে ওই বাড়িতেই। রণদেব, রণদেব আছো? রণদেব শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। রণদেব, আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, তুলসী তলায় সাজানো হচ্ছে সব সবজি চাল। এখান থেকে সংগ্রহ করবেন জেপি নাড্ডা। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। হ্যাঁ, এখানে এই নিতাই মণ্ডলের বাড়িতেই এখানে জেপি নাড্ডা সভা প্রায় শেষ পর্যায়ে এখানেই আসবে নিতাই মণ্ডলের বাড়িতে। মুঠগুলি এই আশি পাড়াতে, এই উত্তর পাড়ায় 5 কৃষকের বাড়ি থেকে উনি চাল সংগ্রহ করবেন। হিন্দু পরম্পরা মেনে নিতাই মণ্ডলের বাড়িতে কিন্তু সিধে ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে, যাতে সিধা বলা হয়। সেটাকে চাল এবং ফুলকপি, বেগুন, আলু, টমেটো, ডাল এবং নুন, সঙ্গে মূলের শাকও রাখা হয়েছে। হরিতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। নাড্ডাজিকে অভ্যর্থনা জানানো হবে। বাড়ির মেয়েরা একদম পুরোপুরি হিন্দু গৃহিণী হয়ে সেজে রয়ে গেছে। রণদেব, এখানে যা যা সবজি সাজানো হয়েছে যেমন তুমি বললে, সেই পুরোটাই কি তুলে দেওয়া হবে জেপি নাড্ডার বাড়িতে? জেপি নাড্ডা এখান থেকেই চাল আর এই সমস্ত গুলো নিয়ে যাবেন? হ্যাঁ, জেপি নাড্ডা এমনি বিজেপির পক্ষ থেকে বাড়ির কৃষকদের জানানো হয়েছে যে উনি একটি ধামা আনবেন, ধামাতে চাল এবং অন্যান্য সামগ্রী নেবেন। এখন সেই মতো এনারা অল্প কিছু চাল এবং অন্যান্য সামগ্রী, যে সবজি এবং ডাল রেখে দিয়েছেন। জেপি নাড্ডা ধামায় করে সেই চাল এখান থেকে 5টা বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে যে কৃষক সুরক্ষা অভিযান, এই রাজ্যের কৃষকদের পক্ষে যে সুরক্ষা দেওয়া, সেই অভিযান কার্যক্রম শুরু করবে এবং তারপরে এটা নিয়ে চলে যাবে। তারপরে উনি মধ্যাহ্ন ভোজন ছাড়ার জন্য মানবী মণ্ডলের বাড়িতে পৌঁছাবে। আমরা তুলসী মঞ্চের ছবি দেখতে পাচ্ছি। রণদেব, তুলসী মঞ্চ কেন? এটা কি এখানকার স্থানীয় রীতি? না, এখানকার একদম পিওর এখানকার স্থানীয় রীতি হচ্ছে প্রত্যেকটা বাড়িতে তুলসী মঞ্চ থাকে। সেই তুলসী মঞ্চেই সমস্ত শুভকর্ম তুলসী মঞ্চ থেকেই করা হয়। এই তুলসী মঞ্চ থেকে এই তুলসী মঞ্চ থেকে যে ঢুকছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ধন্যবাদ রণদেব। आज की सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के जुझारू, धर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष और सांसद सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय मुकुल राय जी, हमारी सांसद लॉकेट चटर्जी जी, हमारे सांसद स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पश्चिम बंगाल के नेता राहुल सिन्हा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद सुनील मंडल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने इस क्षेत्र के आदरणीय माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मुझे आज यहाँ आकर अत्यंत हर्ष हो रहा है और
इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां स्वामी विवेकानंद ने अपनी कर्म भूमि के रूप में जिसमें उनका लालन पालन हुआ हो, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी हो, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को एक दृष्टि दी, श्री अरबिंदो जिन्होंने अध्यात्मवाद में देश को एक नई दिशा और ऊंचाइयां पहुंचाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश में एक नई चिंगारी के साथ एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन के साथ साथ यहां से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, आज मैं राधा गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा लेते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, और जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को सूचित करता है। ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है, और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा, और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम प्रण लेते हैं। मित्रों, 24-27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें। गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा, अभी हम लोगों ने सुंदर गीत सुना। उस गीत के बोल थे कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ हैं, किसान की आवाज तुम्हारे साथ है। और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं,
किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता है। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब यहां पर इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात मैं बार बार मित्रों, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नाम से शुरू किया गया और मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल की भी 17 मंडियां जुड़ी हैं। आज 17 मंडियों में किसान अपना सामान देश के किसी भी कोने में किसी अच्छे दाम पर बेच सकता है। ये आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, ये हमको समझना चाहिए। जहां तक सॉइल हेल्थ कार्ड का सवाल है, कभी सोचा नहीं था किसी ने, लेकिन आज लाखों लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से अभी 100 रेलगाड़ियां, 100 रेलगाड़ी किसान रेलगाड़ी को शुरुआत की गई, जो महाराष्ट्र के संगोला से चल करके वेस्ट बंगाल में शालीमार हावड़ा में वो पहुंचेगी और पहुंच रही है। ये काम 28 दिसंबर को इसका भी श्री गणेश हुआ है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी 3 किसान के बिल आए हैं। ये बिल किसान को आजादी देते हैं, किसान को बढ़िया दाम देने वाले हैं और किसान की उपज का सही दाम मिले, इसकी योजना उसके अंदर है। और किसान सीधा सीधा अपने जमीन में उपजने वाले चीज का कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है। ये व्यवस्था की गई है। मित्रों, इन व्यवस्थाओं का उपयोग करना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसको पूरा करना हमें करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे कम 29 स्टेट्स में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर दिया। बोलो, इसको बदलना है कि नहीं बदलना है?
बदलना है कि नहीं बदलना है? पीछे से मैं आवाज सुनना चाहता हूं, बदलना है कि नहीं बदलना है? अगर बदलना है तो कृषक सुरक्षा अभियान को ठीक ढंग से चलाकर लोगों को इसका सहयोग करके इसमें हमको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं पानी की बात करूं तो बंगाल में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सिंचित भूमि आधी असिंचित है। यह है अकर्मण्यता, यह है यहां की सरकार लंबे समय तक जिन लोगों ने आपको वंचित रखा है। लेकिन मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा, फिर चाहे वो स्वच्छ भारत हो, फिर चाहे वो जनधन योजना हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान योजना हो। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मोदी जी ने आपको आयुष्मान भारत में 4 करोड़ 67 लाख लोगों को और 1 करोड़ 11 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का प्रति साल का हेल्थ एश्योरेंस, हेल्थ के लिए आपको पैसा दिया। लेकिन ममता जी ने 4 करोड़ 67 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 4 करोड़ 67 लाख लोगों को आयुष्मान भारत पहुंचाया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनको दिया जाएगा। यहां ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट मेट्रो का बन रहा है, लगभग 8,575 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 3,665 नेशनल हाईवे बना है वेस्ट बंगाल में, यह मोदी जी ने किया है। ममता दीदी पीछे करवे ना, कोई कुछ करेंगी नहीं, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में अब दिल्ली में मोदी जी और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, अगर हम अम्फान की बात करें, यहां का कल्चर कट मनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दिए। हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया टीएमसी को। आपकी तालियां बताती है कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉटमनी, कॉटमनी, कॉटमनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर, चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर, त्रिपाल चोर। आम आदमी, और दुख की बात है, हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर सीएजी से ऑडिट कराओ और उसकी रिपोर्ट रखो। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई चोर को बचाने के लिए, चौल चोर को बचाने के लिए, त्रिपाल चोर को बचाने के लिए। ममता जी এত ভয় কেন, এত ভয় কেন, কি হয়েছে? हर बात में बोलबे होबे ना, होबे ना, होबे ना। मई महीने में होबे, होबे, होबे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे, 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 ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये भ्रष्टाचार इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं बात करूं इसी दृष्टि से विकास में, तो हमको मालूम है कि चौल चोर, त्रिपाल चोर तो ही है, लेकिन मोदी जी के स्कीम का नाम की भी चोरी करते हैं। स्वच्छ भारत को निर्मल बांग्ला, पैसा मोदी जी ने, मोहर ममता लगाए, ऐसी राजनीति करते हैं। बांग्लार बाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार बाड़ी, तुम्हार बाड़ी समझ में आता है उनको, अपनी बाड़ी समझ में आता है मुझे। बांग्लार बाड़ी और ममता जी अपना मोहर लगाए।
उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसको बंगला ग्रामीण सड़क योजना। मोहर बदल देने से बंगाल के लोगों में मोदी जी के लिए दिल में जगह कम नहीं होती है, बढ़ती है। यह बात हमको समझनी चाहिए। अरे मोदी जी का नाम कहां कहां से हटाओगे? वो तो दिलों में बसे हुए हैं। बसे हैं कि नहीं बसे हैं? बसे हैं कि नहीं बसे हैं? लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने दिन रात एक काम किया है, हर कुछ किया। आप बताइए, मोदी जी ने यहां ट्रेनें भेजी थी कोविड में कि नहीं भेजी थी? लोगों को घर पहुंचाने का काम किया था नहीं किया था? किसने कहा था ये कोरोना कैरियर है? किसने कहा था? ये इनका बंगाल के लोगों के प्रति प्यार और समर्पण है। ये इनका समर्पण है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा। अगर मैं बात करूं तो ममता जी बोलती थी कि हम यहां मां, माटी, मानुष, इनके लिए हम काम करेंगे। यह बात इन्होंने कही थी, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? इन्होंने किसके लिए काम किया? इनकी सरकार तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, इसके लिए काम किया। इसलिए समय आ गया है मित्रों, हम किसानों के घर घर जाएंगे, उनको हम मदद करेंगे। आज भ्रष्टाचार की यह स्थिति हो गई है कि अंतिम संस्कार के लिए भी कट मनी देना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये भ्रष्टाचार की स्थिति ला करके खड़ी करती है। इसलिए मित्रों, यहां भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं, चिटफंड, नारदा, शारदा, हर एक तरीके के। यहां एक नया राजकुमार, आपको मालूम होगा किस तरीके से उन्होंने भी धन का उपार्जन किया है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा और इसी धरती पर बंगाल की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस ले और जिस तरीके से आपने मेरा स्वागत किया है, जो गर्म जोशी आपने दिखाई है, जो मैं अभी भी देख रहा हूं, लंबी कतार हेलीपैड तक लोगों की लगी है, ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा। ये जो मुझे यहां दिखने को मिला है, मैं ये कहूंगा कि आपने तय कर लिया है, बंगाल से आवाज निकल पड़ी है, आपने तय कर लिया है कि ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को काम में लगाना है। इस बात को आपने तय कर लिया। इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ अंत में एक नारा लगाऊंगा। ये नारा का जवाब भी आप नारे में ही देंगे। मैं कहूंगा जय मां दुर्गा, जय मां काली। आप कहेंगे शेष करो अत्याचारी। ठीक है? जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ। কৃষক সুরক্ষা অভিযান শুরু করলেন জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এবং বললেন 27 থেকে 31 জানুয়ারি দেশ জুড়ে 40,000 গ্রামে যাবেন কৃষকদের বোঝাতে কৃষি আইন নিয়ে এবং কৃষকদেরকে ভুল বোঝানো হচ্ছে, সঠিক বোঝাবেন বিজেপি নেতৃত্ব। এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এ রাজ্যে চাষবাস করতেও অসুবিধে হচ্ছে, জলের কোনো অভাব নেই, সঠিক দিশা নেই। সেই কারণে এ রাজ্যে চাষিরা, কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। বিজেপি ক্ষমতায় আসবেই বলে দাবি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার এবং তিনি আক্রমণ করলেন খুব স্বাভাবিকভাবেই আগামী 21-এর লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে দুর্নীতির কথা বললেন তিনি। কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই সরকার প্রয়োজন বলেও তার দাবি। বিজেপি সরকার এই মুহূর্তে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন দিলীপ ঘোষ। আমূল সংস্কার ও বাংলার কৃষক বর্গকে কেন্দ্রীয় সরকারের
সমস্ত কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের আওতাভুক্ত করবে। বাংলায় এবার আসল পরিবর্তনের সময় এসেছে। বাংলার কৃষক সমাজের অভ্যুত্থান হবে। প্রগতির জয়ধ্বজা বহন করে কৃষক সমাজ উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য অগ্রসর হবে। ভারত মাতা কি। শপথ বাক্য পাঠ এবং ভারত মাতা কি। শপথ বাক্য পাঠ এবং সেই বাংলায় শপথ বাক্য পাঠ করলেন জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো হবে, কৃষকদের উন্নয়ন হবে, বিজেপি ক্ষমতায় আসবে, এই শপথ বাক্য পাঠ। জেপি নাড্ডা এরপরে চলে যাবেন চাল সংগ্রহ করতে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চাল সংগ্রহ করতে যাবেন কৃষকদের বাড়িতে। 5 কৃষকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল সংগ্রহ করবেন। চাল, সবজি তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন কৃষক পরিবারেরা। জেপি নাড্ডা আজকে ঠাসা কর্মসূচিতে প্রথম রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিলেন এবং রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর এই মুহূর্তে তার জনসভা শেষ করলেন। যে জনসভার শুরুতেই কৃষক সুরক্ষা অভিযান, এ রাজ্যে কৃষক সুরক্ষা অভিযান নামে নতুন অভিযান বিজেপি শুরু করলো এবং এই কৃষক সুরক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য, বিজেপির দাবি, প্রত্যেক কৃষক যাতে ঠিকঠাক ভাবে উৎপাদনের মূল্য পায়, প্রত্যেক কৃষক যাতে চাষবাসের ক্ষেত্রে কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, তার জন্য শপথ নিলেন। ববি হাকিম কি বলছেন শুনবো। সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টির